Hello, dear children. Today, in looking around EVS book, we will do lesson number 6, Ria's Journey, part 1. Very good morning to everyone. I hope everyone is fine. Dear children, today in our environment looking around book, we are going to start a new lesson. That is your lesson number 6, Ria's Journey. Dear children, we will be doing part 1 of this lesson, as this lesson is quite lengthy and I need to explain you each and every part of the train's journey. This lesson, dear children, is about a journey of a girl named Ria by train and what all she sees and how she feels about that journey, the excitement, the things that she sees during the journey is everything she has penned down in a diary. So that we are going to read. And there are so many aspects of the train's journey. It's not that simple that we go to the station, board the train, and we travel. No, there are many points when we travel by train. First of all, we want to have the tickets. If it is a night journey, then we want a reservation seat so that we can sleep in the train at night. And then the reservation has to be done few days ago. The tickets need to be booked. Then we need to go to station in time. The time that the railways use and the time that we use is a little bit different. So there are many aspects and all these things that I'll explain you in this lesson as we read along with the Ria. Chapter 6, Ria's Journey, which is on page number 41. So dear children, I'll read now. Ria and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Ria was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family on a holiday. Now यहाँ पर जो ये स्टोरी है, ये जो डायरी लिखी है वो रिया ने लिखी है, लेकिन रिया और जिया दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं एक ट्रेन जर्नी को लेकर. दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट जर्नी क्योंकि दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं. रिया जो है वो अपने फैमिली के साथ जो है वापी जा रही है ट्रेन में जहाँ पर उसके अंकल रहते हैं, और जिया जो है वो दमन जा रही है अपने फैमिली के साथ फॉर अ हॉलीडे. Now, Vapi and Daman both are the place near Surat. Vapi is little bit ahead of Surat and Daman is also close by. So, दोनों जो है ट्रेन से जर्नी कर रहे थे. As both the families decided to go together, Ria's father had booked train tickets for both the families before 15 days. अब दोनों families ने ऐसा decide किया कि they both are going together. So, रिया के father ने क्या किया कि 15 days पहले ही जब उनको जाना था उसके 15 days पहले ही उन्होंने टिकट्स बुक करवा लिए थे दोनों फैमिलीज के लिए. Just 2 days before their journey, Jia fell ill. Doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. Due to Jia's cancellation, Ria felt very sad. अब जब ट्रेन की टिकट बुक कराई तो 15 दिन पहले मतलब 15 days ahead, Ria's father had done the reservations. When we travel by train on a long distance, we need the reservations. हमको टिकट जो है रिजर्व करानी पड़ती है so that we can sit easily and we don't have any problem while traveling on train. इसलिए और क्योंकि अगर नाइट जर्नी होती है तो स्पेशली वी नीड द रिजर्वेशन सो दैट वी कैन स्लीप इन नाइट. अगर रिजर्वेशन नहीं होगा देन वी कैन नॉट स्लीप, वी हैव टू सिट एंड ट्रैवल. तो रिया के फादर ने पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया था, लेकिन 15 दिन पहले करवाया था और जाने से जस्ट 2 days ago, मतलब जाने जब उनका डेट था जिस दिन उनकी टिकट थी उससे ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ कि जिया बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि वो रेस्ट करे और वो ट्रैवल बिल्कुल ना करे. इस वजह से जिया के फैमिली ने उनकी जो टिकट थी वो कैंसिल करवा दी. तो जिया के फैमिली ने जब टिकट कैंसिल करवा दी तो दोनों फ्रेंड्स बहुत दुखी हो गए. रिया और जिया दोनों बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त वो क्या क्या करेंगे. जिया बीमार पड़ी इसलिए रिया भी बहुत ही दुखी थी. शी वॉज वेरी सैड बिकॉज जिया's tickets were कैंसल्ड.
जिया सेड आई हैव एन आइडिया। अब जिया ने बोला कि अगर रिया दुखी है तो जिया ने सोचा, उसने एक आइडिया उसको आया। शी सेड टू रिया, उसने रिया से कहा कि डोंट बी अपसेट, अपसेट मत हो। यू राइट सम एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। आप एक डायरी लीजिए और अपनी सारी चीज़ें जो है एक डायरी के अंदर नोट करिएगा। एंड टेक द फोटोज एंड द वीडियोज इन योर मोबाइल। और जहाँ जहाँ आप घूमने जाएंगे वहाँ वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन में ले लीजिएगा, सो दैट व्हेन यू विल कम बैक आई कैन सी दोज फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू डू ड्यूरिंग योर जर्नी एंड व्हेन यू गो आउट फॉर अ when you go out to see the different places, sightseeing also you mention, so that I can read. When you will come back, I will read your diary and will see the photos and videos too. जब आप लोग घूम कर वापस आओगे तो मैं सारे फोटोज़ और वीडियोज़ और देख लूँगी और डायरी पढ़ लूँगी। Ria went to her home. She found a notebook and a pen and put her in her bag. रिया घर वापस आई और उसने जो है एक नोटबुक और एक पेन ली और अपने बैग में अपने बैगेज के साथ रख दी। नाउ डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर पार्ट। ये जो पार्ट है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 यू कैन सी हियर देयर इज़ अ क्लॉक। यहाँ पर एक क्लॉक दी हुई है विच इज़ द रेलवे क्लॉक। ये कौन सी क्लॉक है? ये रेलवे स्टेशन पर जो है या जंक्शंस पर जो क्लॉक होती है, दिस इज़ दैट क्लॉक। अब यहाँ पर डेट लिखी हुई है 28 मई, दैट मीन्स एंड इट इज़ रियाज डायरी। सो रिया की जर्नी कब शुरू हुई? रियाज जर्नी स्टार्टेड ऑन 28th of May and at 20:55 hours. The time written here is 20:55 hours. Now dear children, it is very important to understand the time that the railways use. हम जो clock use करते हैं उसको जो घर में use करते हैं that we call it as 12-hour clock. उसको हम 12-hour clock कहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि एक से जैसे रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का एक 12 आवर होता है और फिर दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक का दूसरा 12 आवर होता है। तो एक जो टाइम होता है वो रिपीट होता है। जैसे एक दो बार दिन में 1 बजता है, 2 बार दिन में 6 बजते हैं, 2 बार दिन में 5 बजते हैं, एक रात सुबह के एक शाम के, इस तरीके से टाइम रिपीट होता है। लेकिन जो रेलवेज वाले होते हैं वो 24-hour क्लॉक को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स द टाइम इज़ नॉट रिपीटेड लाइक 12 to 12 नहीं होता है, 1 से 24 आवर्स पूरे कंप्लीट करते हैं। जैसे 1 अगर 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हो गया, वो 12 आवर हो गया। उसके बाद जो 1 बजता है दैट इज़ योर 13 आवर्स, 2 बजता है वो 14 आवर्स हो गया, 3 बजता है दैट इज़ 15 आवर्स, 4 o'clock इज़ 16 आवर्स, 5 o'clock इज़ 17 आवर्स, 6 o'clock इज़ 18 आवर्स। तो उस तरीके से लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं इन आवर्स। एंड 20:55 आवर्स का मतलब होता है रात के 8:55। दैट मीन्स 8:55 PM और 8:55 एट नाइट इज़ द टाइम दैट दिस क्लॉक इज़ शोइंग। ये घड़ी जो है रेलवे स्टेशन की हमको ये टाइम बताती है कि रात के 8:55 हुए हैं, 8:55 PM एट नाइट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन का पिक्चर है जहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे आके एक ट्रेन खड़ी रहती है। सो इन द railway station there are platforms, different platforms like platform number 1, number 2, number 3, number 4, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ट्रेन आकर खड़ी रहती है। हमारे यहाँ जैसे छोटे स्टेशंस होते हैं वहाँ पर 3 या 4 रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। बड़े स्टेशंस हो गए अहमदाबाद, बड़ौदा हो गया, दिल्ली, बॉम्बे हो गया, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ एट अ टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट ट्रेन्स कम एंड द अनाउंसमेंट ऑलवेज गोज ऑन दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म नंबर दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू कम। और हर ट्रेन जहाँ से पिछले स्टेशन से जब आ रही होती है तो ऐसा कहा जाता है कि इस स्टेशन से ये ट्रेन आ रही है। जैसे इफ़ द ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू सुरेंद्र नगर, देन देयर इज अनाउंसमेंट एट द सुरेंद्र नगर जंक्शन पे ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि दिस ट्रेन कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद विल अराइव एट सुरेंद्र नगर स्टेशन एट दिस टाइम। तो इस तरीके से हमेशा जो भी ट्रेन आती जाती रहती हैं उनके कंटिन्यूस अनाउंसमेंट्स जो होते हैं वो होते रहते हैं। और डिजिटल मॉनिटर्स भी होते हैं जिसके ऊपर
digital monitors are also there in which you can see the train number and the name of the train mentioned. तो वो सब दिया होता है जो कि आप देख सकते हैं और आपको पता लग जाता है कि ये ट्रेन इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है. If it is late, then also the announcements are done that this train is behind by 30 minutes, 1 hour, 2 hour, that is also announced. तो हर तरीके की जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, कोई भी ट्रेन जो आने का टाइम होता है उससे रिलेटेड वो कंटिन्यूअस होती रहती है एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं थोड़े रेस्ड होते हैं जिससे कि आप जब आती है प्लेटफॉर्म पे तो आप इजीली ट्रेन में चढ़ सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द लेसन. टुडे इज़ अ फुल मून डे. आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टुक एन auto to reach Gandhidham railway station. After some time, the train arrived at the station. We saw some passengers were sitting in the train. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj main station to Kutch. Of Kutch, the name of the train was the Kutch Express. एक फुल मून डे था मतलब और उस दिन और उन लोगों ने आफ्टर डिनर रात को डिनर करने के बाद रिया और उसके फैमिली ने एक ऑटो हायर किया और वो लोग गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए. दैट मीन्स रिया कहाँ रहती है? रिया लिव्स इन गांधीधाम. रिया गांधीधाम में रहती है और उन्होंने ऑटो हायर करके वो सब गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए. कुछ समय बाद जिस ट्रेन में उनको ट्रैवल करना था वो ट्रेन आई और उसने क्या देखा कि जब वहाँ पर ट्रेन आई तो ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स वहाँ पर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे. दैट मीन्स वो ट्रेन वहाँ से शुरू नहीं हुई लेकिन ट्रेन उसके पीछे के एक उससे शुरू हुई जिसमें क्या था, वो ट्रेन जब वहाँ से उसमें शुरू हुई तो वो ट्रेन जो थी उसके अगले स्टेशन से आ रही थी. दैट वाज द स्टेशन दैट वाज भुज. वो भुज से आ रही थी और वहाँ पे उसमें कुछ बैठे लोग भी बैठे हुए थे. सो देयर वर मेनी पैसेंजर्स हु वर सिटिंग. तो वो जो ट्रेन थी वो कहाँ से आ रही थी? ट्रेन जो थी उसके पहले स्टेशन गांधीधाम के पहले स्टेशन दैट वाज भुज से ट्रेन शुरू हुई थी और वहाँ से वो ट्रेन 7:50 को स्टार्ट हुई और जो है 8:55 को जो है वो गांधीधाम पहुँची. और नाम क्या था ट्रेन का? द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस. हर ट्रेन जो आती और जाती है उसका एक नाम होता है. तो यही जो ट्रेन थी इसका नाम था द कच्छ एक्सप्रेस. अब एक्सप्रेस होता है मतलब कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो लोकल होती हैं, वो सारे स्टेशन छोटे छोटे जितने भी गांव आते हैं या छोटे छोटे शहर होते हैं सबको कवर करती हैं, वो लोकल ट्रेन होती हैं. और कुछ ट्रेन होती हैं एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं जो कुछ स्टेशन जो एकदम छोटे छोटे नहीं लेकिन थोड़े बड़े शहर जो होते हैं थोड़े छोटे शहरों को कवर करती है. फिर उसके बाद एक होती है सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं जो बड़े बड़े स्टेशन को ही कवर करती हैं, जो 3-3 4-4 घंटे के बाद जो चलती हैं वो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं. तो उस तरीके से ट्रेन होती है. तो ये कैसी ट्रेन थी? ये एक एक्सप्रेस ट्रेन थी. तो रिया लोग जैसे ही ट्रेन आई तो सब लोगों ने उस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए ट्राई किया. नाउ विल रीड अहेड. व्हेन वी वेंट नियर द कोच देयर वॉज अ मच कमोशन फ्रॉम द सिंगल डोर. अब जैसे ही रिया लोग जो है कोच में पहुंच के अपने जिस कोच में उनकी टिकट थी उस कोच में पहुंचे तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत लोगों का कमोशन मीन्स देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल इन द कोच. अब जब ट्रेन होती है तो ट्रेन में सबसे आगे एक इंजन होता है विच इज़ अ डीजल और अ इलेक्ट्रिक इंजन होता है. दो टाइप के इंजन होते हैं, आइदर इट इज़ अ डीजल इंजन और एन इलेक्ट्रिक इंजन जो कि ट्रेन को पूरे को खींचता है. और उसके पीछे जो होती है बहुत सारी बोगीज होती हैं. अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है तो 16-17 बोगीज होती हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होती है तो 8-10 बोगीज उसके होती हैं. और जिसको कि हम बोगीज या कोच या कंपार्टमेंट्स वी ऑल्सो से लाइक दैट. And in each of the compartment there are nearly 75 seats in each compartment. हर compartment के अंदर 75 seats होती हैं. That means 75 passengers can be accommodated in one coach compartment or bogie whatever you say. और उसमें दोनों तरफ से जो होता है डोर जो होता है 4 तरफ होता है. उसमें दोनों साइड में जो होता है कंपार्टमेंट के बोथ द एंड्स में दोनों साइड पे डोर होता है क्योंकि कभी स्टेशन राइट साइड में आता है और कभी स्टेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड में आता है. तो डोर्स इस तरीके से होते हैं. तो जैसे ही गांधीधाम रेलवे स्टेशन आया और ट्रेन रुकी तो जिस कोच में उनको चढ़ना था वहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था लोगों का क्योंकि कुछ लोग जो भुज से गांधीधाम आए थे उनको वहाँ पर उतरना था ट्रेन में से और बाकी जो गांधीधाम से जो पैसेंजर्स थे उनको उस ट्रेन में बोर्ड करना था.
People were getting off and the others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt for someone pushing, so he said, train will stop here for 15 to 20 minutes, so don't be in a hurry. अब इतने क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको कि ट्रेन में बोर्ड करना था और बहुत सारों को ट्रेन में से उतरना था, और एक ही सिंगल डोर से जब ये मूवमेंट हो रहा था तो ऐसा हो रहा था कि लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे. तो रिया के फादर को भी ऐसा लगा कि somebody pushed him, so he told his family members that wait, let everybody get down and get in, so that the train is going to stop here for 15 to 20 minutes, so there's enough time you can board the train. Because the time limit is fixed for each of the train. Some express trains when they stop at the small stations, they stop for just 2 minutes 3 minutes. कोई ट्रेन 5 मिनट खड़ी रहती है, कोई ट्रेन जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं which stops after 3 to 4 hours, so continuously after 5 hours they stop at a station. तो वहाँ पर वो 15 मिनट या 10 मिनट तक वो ट्रेन खड़ी रहती है. तो उसके फादर ने कहा, रिया के फादर ने कहा कि ट्रेन 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर खड़ी रहेगी, so no need of hurry, we'll get into the train when everybody gets in and out. We somehow managed to get in, found our seats, and kept our luggage in a proper place. By this time, the train started. Most people had found their seats. Mother and I got window seat. Father and Himaksh got the middle seat. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had 2 children of our age with them. They got the 2 upper seats and 2 lower seats. अब जैसे somehow they managed to get into the train. जैसे ही ट्रेन में वो लोग चढ़े और उन्होंने अपनी सीट्स को ढूंढा और अपनी सीट्स में ढूंढकर अपना लगेज वगैरह सब जो है उन्होंने प्रॉपर प्लेस में रख दिया. When you board the train, जिस भी कंपार्टमेंट या कोच में आप जाते हैं तो वहाँ पर सीट नंबर्स लिखे हुए होते हैं. 1 से लेकर 75 तक के सीट्स होते हैं और ऐसे सामने सामने 6 सीट्स होते हैं, 3 वन साइड और 3 अदर साइड. तो उसमें अपर, लोअर और मिडिल ऐसे करके 3 सीट्स होती हैं. सबसे ऊपर वाली होती है वो अपर होती है, बीच में आती है वो मिडिल होती है और सबसे नीचे होती है वो लोअर सीट होती है. तो रिया और उसकी मम्मी को जो है वो विंडो सीट मिली और फादर और हिमांश जो उसका ब्रदर था उनको मिडिल सीट मिली. वो और उनके जब वहाँ पे वो सीट पे बैठे तो वहाँ पर ऑलरेडी देयर वाज वन फैमिली सिटिंग और उनके भी 2 बच्चे थे जो इन्हीं के एज के, रिया और हिमांश के एज के ही थे. लेकिन वो लोग गांधीधाम से नहीं बैठे थे, वो उसके पहले स्टेशन से बैठे थे. पहले स्टेशन मतलब द प्रीवियस स्टेशन वाज द ट्रिप फ्रॉम वेयर द कच्छ एक्सप्रेस हैज स्टार्टेड, दैट वाज द भुज रेलवे स्टेशन. तो वो लोग भुज से बैठे थे और उनके भी 2 बच्चे थे जो कि इन्हीं के एज के थे. और उनको कैसे सीट्स मिली थी? उनको 2 अपर सीट्स मिली थी और 2 लोअर सीट्स मिली हुई थी. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 43. After some time, the ticket checker came and checked our tickets to see if we were in our proper place. अब कुछ समय बाद जब ट्रेन स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा चलना शुरू हो गया, तो वहाँ पर कौन आया? वहाँ पर एक पर्सन आया who is called as the ticket checker. टिकट चेकर जिसको कि हम TC इन शॉर्ट भी कहते हैं, और इसका मतलब he is the person who checks the tickets of all the passengers who have boarded the entire train. पूरी ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, 1 कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट टू 3rd कंपार्टमेंट, इस तरीके से जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो उनकी सबकी टिकट्स चेक करता है, देखता है कि जो नाम है और जो सीट नंबर है उसी सीट नंबर में आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप किसी और की सीट पे तो नहीं बैठे हैं, हाउ मेनी सीट्स आर फिल्ड, हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो टिकट चेकर देखता है. आपके आधार कार्ड जो होते हैं वो भी आपको कैरी करने होते हैं साथ में, बिकॉज नाउ द आधार कार्ड्स आर ऑल्सो बीइंग चेक्ड इन द ट्रेन्स. तो टिकट चेकर जो होता है उसको बहुत सारी, उसके पास भी जैसे हमारे पास टिकट होती है, तो जब हम टिकट कराते हैं तो वी गेट ए कंप्यूटराइज टिकट. अब कंप्यूटर से पहले तो थी हैंड रिटन टिकट्स ऑन द हार्डबोर्ड, जैसे उसमें छोटी छोटी हैंड रिटन टिकट्स आया करती थी. लेकिन अब जो है कंप्यूटराइज टिकट्स मिलती हैं जिसमें कि आपके जितने पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके सबके नाम होते हैं, उनकी एज होती है, वेदर दे आर मेल और फीमेल, दैट इज़ ऑल्सो रिटन, और उसके बाद जो है उनके सीट नंबर साइड में लिखे हुए होते हैं. तो ये टिकट हमारे पास होती है. और
एक चार्ट जो होता है या एक शीट ऑफ पेपर के अंदर बोगी वाइज जो है ये टिकट चेकर के पास भी पूरा चार्ट होता है कि अगर एक बोगी में इतने पैसेंजर्स हैं तो कौन कौन से पैसेंजर्स उसमें हैं, एंड ही मैचेस दैट हिज चार्ट विद द टिकट। तो इससे पता लगता है कि आप सही सीट पर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करता है। सो ही इज़ कॉल्ड एज द टिकट चेकर। और पूरी ट्रेन में एक लास्ट में जो होता है वो गार्ड का भी जो होता है बोगी होता है, जिसमें एक गार्ड होता है जिसका काम होता है कि वो फ्लैग्स वेव करता है। रेड और ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, आपने अगर देखा होगा रेलवे स्टेशन में तो देयर टू टाइप्स ऑफ फ्लैग्स दैट आर इन द हैंड्स ऑफ अ गार्ड। वन इज द रेड वन, जब कोई स्टेशन आ रहा होता है और ट्रेन को रुकना होता है उस स्टेशन पर तो गार्ड जो है वो लाल झंडी दिखाता है, और जब उस स्टेशन से डिपार्ट करना होता है तो गार्ड शोज द ग्रीन फ्लैग एंड द ट्रेन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो वो गार्ड होता है और ये टिकट चेकर होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये टिकट चेकर है, ही इज़ द टिकट चेकर। इसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है और सर पे जो है एक वाइट कैप है। तो टिकट चेकर को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी यूनिफॉर्म से। ही हैज़ अ स्पेशल यूनिफॉर्म, वाइट शर्ट, वाइट ट्राउज़र एंड अ ब्लैक कोट एंड अ वाइट कैप। उसके जो वाइट कैप और ब्लैक जो कोट होता है उससे ही पता लग जाता है कि ही इज़ अ टिकट चेकर। तो अगर आपको पहचानना है तो उसकी यूनिफॉर्म से आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको और दूसरों से आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, वो आपको सबसे अलग करता है। आपका यूनिफॉर्म ही आपको जो है बताता है कि आप क्या है और आप क्या काम करते हैं। तो वैसे ही टिकट चेकर का उनका खुद का एक यूनिफॉर्म होता है जिसको वो उनको डेली जो है दे हैव टू वेयर दैट यूनिफॉर्म व्हेन दे कम फॉर द ड्यूटी टू चेक द टिकट्स। तो जैसे ही रिया लोग बैठे और ट्रेन आगे बढ़ी वैसे ही वहाँ पर टिकट कलेक्टर या टिकट चेक करने वाला एक व्यक्ति आया और उसने सबकी टिकट्स चेक की कि सब लोग प्रॉपर प्लेस में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चन आंसर्स इन दिस। तो हम टिकट चेकर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके कपड़ों से, ब्लैक कोट, वाइट ट्राउजर, वाइट शर्ट एंड द कैप। और वो क्या काम करता है? सभी पैसेंजर्स के टिकट को चेक करने का काम करता है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट जो है पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है कि स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन इज़ नियर। जब कोई थोड़ी सी दूर पर जो होता है स्टेशन नया स्टेशन आ रहा होता है, जब ट्रेन आगे बढ़ रही होती है तो जब स्टेशन दूसरा स्टेशन आने वाला होता है तो स्टेशन जब आने से थोड़ी दूर पहले ऐसे बड़े से बोर्ड्स लगे होते हैं जो बताते हैं कि दिस इज़ योर नेक्स्ट स्टेशन, ये आपका नया अगला स्टेशन आने वाला है। अब यहाँ पर आप घड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर घड़ी में टाइम क्या दिखा रहा है? 10:15। रात को 10:15 का टाइम है और यहाँ पर जो है रेलवे के टाइम के हिसाब से 20 to 15 आवर्स, यानी कि 10:15 रात के हुए हैं। 20 to 15 आवर्स का मतलब है 22 आवर्स मतलब 10:15 तो है ही है। तो 10:15 में रात का जो टाइम है और इसमें क्या लिखा हुआ है अब After 1 hour the train stopped at one station. I saw it from the window. फिर 1 घंटे के बाद जो है ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी और जो है रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने क्या लिखा? वहाँ लिखा हुआ था समख्याली जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन। तो उसने क्या लिखा कि जब ट्रेन रुकी स्टेशन पे तो उसने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था समख्याली जंक्शन। तो जैसे हम लोग जब स्टेशन पे पहुंचते हैं ना तो वहाँ पर एक येलो कलर के बोर्ड होते हैं जो स्टेशन में जगह जगह पर रखे हुए होते हैं। येलो कलर के डायमंड शेप के बोर्ड होते हैं और उसके अंदर ब्लैक आउटलाइन होती है, फिर उसके अंदर ब्लैक से नाम लिखा होता है उस स्टेशन या जंक्शन का, जिससे पता लगता है कि ये स्टेशन या जंक्शन है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। आई आस्क्ड माई फादर वाई इज द जंक्शन was written after the at the station's name. Our father explained to me that the station at which 2 or more railway tracks are separating is called as junction. From this, 2 railway tracks are separating, one on the track which our train is going running to is the way to Ahmedabad and the other goes to Palanpur. तो रिया ने पूछा कि यहाँ स्टेशन की जगह जंक्शन क्यों लिखा हुआ है। उसके पापा ने क्या जवाब दिया कि जंक्शन हम क्यों लिखते हैं, स्टेशन की जगह पर हम जंक्शन तभी लिखते हैं जब यहाँ से एक जगह से एक से ज़्यादा रेलवे लाइंस जो है दूसरे जगह पर सेपरेट होती है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है रेलवे लाइंस सेपरेट होती हैं, तब जो है हम लोग जंक्शन लिखते हैं। और वहाँ क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पर जा रही है, जैसे कि अगर हमारे सुरेंद्र नगर है तो सुरेंद्र नगर से एक भावनगर की तरफ भी जाती है, फिर एक दिल्ली की तरफ भी जाती है, तो
ऐसे अलग अलग रूट पे जो है, ट्रैक्स पे जो है ट्रेन जाती है। एक अहमदाबाद की तरफ जाती है, एक भावनगर की तरफ गई, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में हो गई ना ट्रेन। तो वैसे ही उसके फादर ने कहा कि जब एक जगह से जब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है रेलवे लाइन सेपरेट होती है, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो रेलवे ट्रैक है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो हम वो रूट जा रहा है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं जो कि अहमदाबाद की तरफ जा रहा है, और दूसरा रूट कौन सा है जो कि पालनपुर की तरफ जा रहा है। So, dear children, today we will stop at this point only. The remaining part of the lesson I will explain you on the next turn. Bye. Have a nice day. Now, dear children, there are certain hard words of lesson number 6, Ria's journey, that you have to write it in your notebook, classwork one time and homework one time. First of all, in your notebook, you are going to write today's date and classwork, then lesson number and name of the lesson. Now, first hard words, classwork one time and homework one time. RIYA, Ria. JOURNEY, journey. VAPI, Vapi. DAMAN, Daman. FAMILIES, families. CANCELLATION, cancellation. VIDEOS, videos. TRAVELLED, traveled. GANDHI, Gandhi. DHAM, Dham, Gandhi Dham. RAILWAY, railway. STATION, station, railway station. PASSENGERS, passengers. DEPARTED, departed. BHUJ, Bhuj. The, KUTCH, Kutch. EXPRESS, express, the Kutch Express, the name of the train. COACH, coach. COMMOTION, commotion. LUGGAGE, luggage. HIMAKSH, Himaksh. PREVIOUS, previous. TICKET, ticket. COLLECTOR, collector, ticket collector. So these 20 words you have to write it in your notebook, classwork one time and homework one time. The remaining words we will do in the part 2 of the lesson. Bye bye and have a nice day. And dear children, the activity, the question answers that are there in the textbook, that also you have to write it in your notebook one time and you have to complete it in the textbook also. I'll just show you that. On page number 41 are think and write. In which vehicle you have travelled? आपने कौन से vehicle में travel किया है? I have travelled in vehicles like bicycle, scooter, bus, car, train. And if you have travelled in a plane, you can write aeroplane also. What would happen if Jia had travelled despite her illness? If Jia would have travelled despite her illness, her condition would get worse and everyone with her would be in trouble. तो ये तो जो क्वेश्चन आंसर्स है पेज नंबर 41 पर, ये आप नोटबुक में भी लिखेंगे, साथ में टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. एंड देन ऑन पेज नंबर 43 आर सम मोर क्वेश्चंस. What did Ria's father has said to get into the train quietly? रिया के फादर ने क्यों कहा था कि ट्रेन में आराम से चढ़ेगा? When the train arrived at the platform, there was so much of rush of people pushing each other to get in or out of the train. The train was going to stop for 15 to 20 minutes, so he said that. इसलिए उन्होंने कहा कि आराम से चढ़िएगा. How will you recognize the ticket checker at the time of the journey? A ticket checker wears a uniform, black coat, white trousers यानी कि pants and a special type of cap and white shirt. He checks the ticket of all the passengers inside the train. Which details ticket checker checks in the ticket? Ask your teacher. He checks the number of passengers traveling on that time and the seat number. उस टिकट में जितने पैसेंजर्स के नाम होते हैं उतने ही पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उस टिकट पर कि नहीं, ये सब टिकट चेकर और उनके सीट नंबर, ये सारी चीज़ें जो है टिकट चेकर चेक करता है. सो डियर चिल्ड्रन, ऑल दिस यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो वन टाइम. बाय.